পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। নমস্কার, পরিবর্তন নিউজ চ্যানেল আপনার স্বাগত আছে। নতুন আপডেট জন্য চ্যানেলকে লাইক, সাবস্ক্রাইব ও কমেন্টস করুন। আজকে আপডেট, আজ ঋণমুক্ত ভারত গড়তে হবে মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে ধার্মিক একতা ট্রাস্ট সাংবাদিক সম্মেলন। ঋণ মুক্ত ভারত অভিযানকে বাধা সৃষ্টি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিলেন। মিথ্যা মামলা দিয়ে ফাঁসানো হয়েছে জাতীয় সম্পাদক ফারহাদ মল্লিক, ভারতীয়কে সহ অন্য সদস্যরাকে জেলে বন্দী করা হয়েছিল। জেল হেফাজতে 10 দিন পর জামিন পেলেন। ঋণমুক্ত অনেক বড় ব্যাপারই হচ্ছেন, তাহলে সাধারণ মানুষের ঋণমুক্ত কোনো হবে না। কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হুঁশিয়ারি দিলেন। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনো লড়াই নয়, শুধু কেন্দ্র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লড়াই করার জন্য একত্রিত করবেন জন মানুষকে। নোটবন্দি, কোচির মহামারী, ঘরবন্দি বিরুদ্ধেই এই আন্দোলন। যে ব্যাংক ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায় করেছেন, ওনার বিরুদ্ধে শুধুমাত্র মাফি করলেন। উপস্থিত ছিলেন ধার্মিক একতা ট্রাস্ট জাতীয় সভাপতি রাজীব সিং কুশবাহা, ভারতীয় সহ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। যার মাধ্যমে মানুষকে ফাঁসিয়ে সেখানে মানুষ মারা যাচ্ছে। আমরা দিনরাত একটা নবীন কজের জন্য কাজ করছি। দেশে আদরণীয় শ্রী শাহনওয়াজ চৌধুরী भारती জুন 2022 প্রায় 1.5 বছর ধরে চললো আমরা এই অভিযান সারা দেশে চালাচ্ছি। কিন্তু এখন এই মুহূর্তে বর্তমানে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কাজ করতে অনেক হরিপুর গ্রামের ওখানে অনুষ্ঠান করতে গিয়েছিলাম, যেখানে এটা ক্লেম করা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে যে আমাদের ওখানে বহু সংখ্যক মানুষ এসে জড়ো হয়েছেন। তার মানে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা যেখানেই যাচ্ছি সেখানে বহু সংখ্যক মানুষ আজকে ঋণের সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গে যেটা আমরা বলছি যে কোনো মহিলা আজকে বন্ধন ব্যাংকের মাধ্যমে যেভাবে মানুষকে, মহিলাদেরকে প্রতারিত করতে বঞ্চিত নয়, তাহলে এটা প্রমাণ হচ্ছে যে আমরা যে সমস্যাটা সরকারের কাছে নিয়ে গেছিলাম, সর্বপ্রথম যখন আমরা সরকারের কাছে গিয়েছিলাম এই কথাটা রাখতে যে দেশে একটা বড় সমস্যা ঋণের দেখা যাচ্ছে, আমরা এই উদ্যোগ নিলাম। আমাদের টিম সারা দেশে উদ্যোগ নিয়ে আমরা মানুষের আবেদন সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করছি। আর সেটা করতে গিয়ে যেভাবে আমাদেরকে, আমার টিমকে, আমার সাথে গৌতম ভারতীয় ছিলেন, আর একজন ওখানকার আমাদের লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ শফিক মালদার যার নাম, আমাদের 3 জনকে সেই অনুষ্ঠানের মাঝখান থেকে অ্যারেস্ট করে 4টের সময়, যেটা বলা হলো 4টের সময় অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাওয়া হলো। 2 ঘন্টা আমাদের সাথে সত্ত্বেও আমাদেরকে ওখানে 2 ঘন্টা বাঁচানোর পর আমাদের চোখের সামনে ব্যাংকের ম্যানেজারকে ডাকা হলো, ব্যাংকের এমপ্লয়িকে ডাকা হলো, সেখানে কমপ্লেইন রেজিস্টার করা হলো, আর সেটাকে ভিত্তি করে এফআইআর করে আমাদেরকে রাত 8টার সময় অ্যারেস্ট মেমো হ্যান্ডওভার করা হচ্ছে। সেদিন রাতে আমরা সারা রাত লকআপে ছিলাম, সারা রাত ওখানে কাটানোর পর সকালে 11টায় আমাদেরকে কোর্টে প্রস্তুত করা হলো। আর কোর্ট থেকে হলো প্রায় 11 দিন ওখানে থাকার পর আমরা 15ই জানুয়ারি ওখান থেকে বের হয়, আজকে ফিরে এসে আপনাদের সামনে উপস্থিত। তাহলে আমরা যেটা বলছি, বর্তমান যে চেষ্টা করছেন এটা কিন্তু আপনারা কোনোদিন সফল হবেন না, কারণ আমরা মানুষের প্রাণ রক্ষা করছি, মানুষ মারা যাচ্ছে। আমরা সবাই জানি এরকম অনেক লাগে, আমরা প্রমাণ দিতে পারি, আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে মানুষ আমাদের কাছে পাঠায় যে কিভাবে সামান্য টাকার জন্য মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, কিন্তু সরকার কোনোভাবে এই সমস্যাটাকে দেখছে না, যে মানুষগুলো সামান্য টাকার জন্য মারা যাচ্ছে। তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ ছিলেন, আপনার সামনে উপস্থিত আছেন, এরপরে ওনাকে সুযোগ দেওয়ার উনি কথা বলবেন। লোক জুড়েছে, তার 10 গুণ লোক আগামী দিনে জুড়বে। এই যে 10 দিনে উনি যে এই যে মনের মধ্যে এই থাকে, আপনাদেরও আমাদের কাছে, আপনারা আমাদের অনুরোধ, আপনারাও এই ব্যাপারটা মানুষের এই যে आत्महत्या के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं मैं कि ऐसे माहौल में बताया कि मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके दिल्ली से आया हूं। मुझे बंगाल आने की जरूरत नहीं थी। बंगाल की जिम्मेदारी ऑलरेडी फरहाद जी और देव जी को दे दी गई है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बंगाल की पूरी टीम। पिछले 1.5 साल से कर्ज मुक्त भारत अभियान माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती सर के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इन 1.5 सालों में आज लगभग 15 लाख से ज्यादा परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और ये ज्यादातर सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज के दलदल में फंस गया है। लोग रोज जान देने को, लोग इस तरह परेशान हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इन सरकारों को उनकी परेशानियां समझ में नहीं है। इस सरकार ने चंद पूंजीपति परिवारों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। 15 लाख करोड़।
उंगली में गिनने में भी दिक्कत होने लगती साहब कि 15 लाख करोड़ कितने जीरो लगेंगे उसमें। 15 लाख करोड़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, सुभाष चंद्रा जी जो जी न्यूज के मालिक हैं, बीजेपी से सांसद रहे राज्यसभा, उन पर 48,000 करोड़ का कर्जा था, 37,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया गया। 37,000 करोड़, और 37,000 के चक्कर में एक किसान जिसका ट्रैक्टर पे लोन होता है, किसी उसे 37,000 के कारण आत्महत्या करनी पड़ती है, उसे बेइज्जती सहन करनी पड़ती है रिकवरी वालों की। और ये जो हुआ है अभी फराज जी पर, फराज जी को 10 दिन की जेल में डाला गया। ये भी कृषि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक है, कृषि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक और एक महिला कोऑपरेटिव बैंक आई थिंक। ये जिन लोगों ने केस किया है, इनके बहुत कंप्लेन आ रही है हमारे पास, हद से ज्यादा कंप्लेन है। आरबीआई की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन है कि किसान क्रेडिट कार्ड पे कोई भी प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, लेकिन ये बिना प्रॉपर्टी अटैच किए हुए किसी किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन नहीं देते। ये सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, सारे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। और जो महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की जा रही है समूह लोन के नाम पर, अनेक गलत धंधों पर घसीटा जा रहा है, लोन के नाम पर जानबूझकर प्लानिंग की जा रही है। ये पहली गलती है बंगाल के अंदर, ये पहली गलती है। इसलिए आप सब प्रिंट मीडिया बंधुओं के माध्यम से उन कोऑपरेटिव बैंकों को चेता रहा हूं, ये पहली गलती है, इसलिए छोड़ रहा हूं, माफ कर रहा हूं। वरना आज चैलेंज करके जाता हूं कि इन बैंकों पे बहुत जल्दी ताला लगने वाला है। अगर दोबारा इस तरह की गलती हुई किसी भी राज्य में, तो इन बैंकों में ताला लगने वाला है, ध्यान रखें। 4 दिन पहले बिहार में दैनिक जागरण, नाम ले रहा हूं प्रेस का, दैनिक जागरण ने गलत रिपोर्टिंग की थी। बंगाल की ये जो कोऑपरेटिव बैंक हैं जो परेशान कर रहे हैं लोगों को, ये ध्यान रखें। और इस मंच के माध्यम से उनके अंदर में आती है, हमारी किसी राज्य सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हमें पता है देश की जो आम जनता है, साधारण जनता है, वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्ज के दलदल में फंसी है। बिना बताए लॉकडाउन लगा दिया गया। कोई भी व्यक्ति घर का छोटा मोटा कमाने वाला बोले आज शाम को 8 बजे से खर्चा मिलना बंद, तो घर कहां से चलाएंगे? नहीं चला। किस्तों पर वो गाड़ी लेकर रोड में निकले, 2 महीने 3 महीने 6 महीने और 8 महीने 9 महीने बाद जब वापस उन्होंने गाड़ियां रोड पे निकाली, तो बैंक वाले उनकी गाड़ियां भी छीन ले गए। किया है तो वो आम जनता का भी कर्जा माफ करें, उन्हें भी राहत दें। अगर नहीं माफ कर सकते तो कम से कम 2 साल का इंटरेस्ट फ्री पीरियड में दे दिया जाए। खुद बताइए क्या ये डिमांड गलत है? नहीं है ना? हाँ, तो हमारी किसी के राज्य सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आज प्रशासन का काम है ना। इस मंच से, आज इस प्रेस क्लब से, मैं इसीलिए दिल्ली आया हूं, दिल्ली से बंगाल आया हूं। इस प्रेस क्लब से, इस मीडिया के माध्यम से, इस वार्ता के माध्यम से टीएमसी को, ममता बनर्जी जी को, दीदी को और अभिषेक बनर्जी जी को साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर वो इस लड़ाई को टीएमसी वर्सेस कर्जा मुक्ति अभियान बनाना चाहती हैं, तो हमें उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। हम सर पे कफन बांधकर जनता को कर्जा से मुक्ति दिलाने के लिए हैं। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भाटी जी, जिनके मार्गदर्शन में ये कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, वो भारत के पहले और इकलौते पॉलिटिकल ट्रेनर हैं। वो भारत के एकमात्र पॉलिटिकल ट्रेनर नहीं है। हमने साम दाम दंड भेद सब उन्होंने बहुत कुछ अच्छे से सिखाया है और हमने सीखा है। वो एक कहावत है ना कि हथियार डाले हैं, चलाना नहीं, उठना चाहते हैं, तो हमें मात्र 2 मिनट लगेगा यहाँ पर पार्टी लिखने में, मात्र 2 मिनट। बैनर में सिर्फ कर्जा मुक्ति अभियान की जगह कर्जा मुक्ति पार्टी उठा रही थी। 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। और ये अभी चेतावनी नहीं है, अभी से चेतावनी ना समझे टीएमसी आई। लोग कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, उन्हें राहत दी जाए, उन्हें कम से कम आत्महत्या करने से रोका जाए। और हम यही तो डिमांड कर रहे हैं कि केंद्र सरकार या मोदी जी या निर्मला सीतारमण जी एक बार मंच से आकर बोलते हैं कि कोई भी देश में कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। इतना तो बोल सकते हैं ना। 7 बार प्रधानमंत्री कार्यालय जा चुका है और 11 बार वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा जा चुका है। जो 15 लाख लोग हमारे साथ जुड़े, उनकी जानकारी भी पीएम और वित्त मंत्रालय को ऑलरेडी भेजी जाते हैं कि ये लोग कर्जा माफ कर दें लोगों को, उन्हें राहत दे दें तो बेटर है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें पता है ये समस्या राजनीति से उपजी हुई है, इसका समाधान भी राजनीति से ही निकलेगा। अगर नहीं करेंगे, अगर ये कर्जा मुक्त नहीं करेंगे, 2024 इलेक्शन के पहले कर्जा माफ नहीं करेंगे, सुन लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो 2024 में उतरेंगे। बिल्कुल 2 साल का समय दे दें सारी जनता को, इंटरेस्ट फ्री। हाँ जी बिल्कुल, इंटरेस्ट भी एक पार्टी में रह सकता है ना, कोई गुनाह तो नहीं है।
मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैंने पार्टी का नाम नहीं लिया था, आपने पार्टी का नाम लिया तो मैंने बोल दिया। नहीं, आपके तो लिखा भी है ना। हाँ, भारतीय लिखा हुआ है, पार्टी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हम सब भारतीय, मैं अपना पूरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती लिखता हूँ, राज मलिक भारती लिखते हैं, देवनारायण भारती लिखते हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व है। हम जाति बंधन, जाति धर्म, इन सब चीजों को छोड़कर हम भारतीय बनने में विश्वास करते हैं। জানিয়েছেন তারা সবাই সফল হবে, এটা তো অভিযান। তো অভিযানের মানে কি হলো? অভিযান মানে তো এটাই না, আমরা সেই মগজ করবো, তখন যেই সমস্ত মানুষ আবেদন করেছেন সবার একসাথেই হবে, কারণ আগে আর পরে হবে না। পরিষ্কার আমরা বারবার করে বলছি। हम अभी तक 2 लाख लोगों को आत्महत्या करने से बचा चुके हैं लगभग। ये उनकी दुआएं हैं जो हम काम करते हैं। पैन इंडिया पश्चिम बंगाल में भी 1 लाख परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे देश में 15 लाख परिवार जुड़े हैं। 15 लाख व्यापारी वर्ग है, और आप सबको पता है कि व्यापारी वर्ग कम से कम 100 परिवारों से टच में रहता है। जब अदालत में मैंने बताया कि किस तरह से क्रॉस एफआईआर कराया गया, मेरे सामने बैंक वालों को बुलाया गया, मेरे सामने उन्होंने कंप्लेन लिखा। तो नाम बताइए, खुल के नाम बताइए कौन है, नाम तो आपको मालूम ही होगा ना। कृषि क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, अरे कृषि को उसके तोरणीपुर एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, ये तो में है। उसका सामने मैदान में हम लोगों का कैंप लगा हुआ था, उसमें फराज जी सबको ऑर्गेनाइज करके फॉर्म भरा रहा था। 1000 आदमी फॉर्म भर चुका था, तो 1000 आदमी जब जुड़ गया, उन लोगों को डर लगा कि उसका बैंक बंद हो जाएगा, इसीलिए उन लोग कंप्लेन किया है पुलिस को। कंप्लेन करने के बाद पुलिस आके फराज जी को थाना में पूछताछ के लिए वहां से लेके गया। जाने का बाद फराज जी बोल रहे थाना में ये लोग आया, फराज जी के सामने कंप्लेन लिखा, फराज जी को अरेस्ट कर दिया। मैनेजर ने करवाया था ना कि और किसी मैनेजर का नाम बताइए। मैनेजर का नाम क्या है? अध्यक्षों को पत्र ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, जिसमें से 10 सांसदों ने रिटर्न रिप्लाई भी किया है कि हाँ वो इस मुद्दे का समर्थन करते हैं। बाकी की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है। अभी हम उनके घरों पे हम डायरेक्ट अपना प्रतिनिधि भी भेजेंगे, उनके पास टीम जाएगी, उनके घर में उनसे मिलेगी। और जैसा आपने सवाल किया कि आपको जो एक आम आदमी किसी पर चोरी हो जाता है, आप किसी थाने में एफआईआर दिखाने जाइए ना, तो वहां भी पुलिस वाले भाई जेल में रह के आया है बिना किसी सबूत के। सर बिल्कुल कोई कम और ऐसे एफआईआर निकली और 10 दिन से परेशान है हम। सर बड़ों ने 2 साल का समय नहीं दिया, तो 2024 में 543 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे, जनता वर्सेस नेता की लड़ाई लड़ेंगे। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति, ये समस्या ही राजनीतिक है, पार्टी की समस्या नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि जिन व्यक्ति के अंदर में यह अभियान चल रहा है, जिनके मार्गदर्शन में माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, वो भारत के पहले और इकलौते पॉलिटिकल ट्रेनर के नाम पे जाने जाते हैं। मैं उनका एक स्टूडेंट है, मैं ऑलरेडी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय परिवार पार्टी। सर के 17-18 स्टूडेंट हैं जो अपनी अपनी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी मैटर नहीं करती, लेकिन हम उस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहते। हम चाहते हैं कि जो वर्तमान सरकार है वो कर्जा माफ कर दे तो बेटर है। हम उस लड़ाई में कूदना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो फिर सक्षम है, फिर पार्टी मैटर नहीं करती। कर्जा मुक्ति अभियान की जगह कर्जा मुक्ति अभियान पार्टी हो जाएगी, क्या फर्क है?